और उसके बाद कभी गिव अप मत करना. माई जर्नी वॉज नॉट सो इजी. It was like a roller coaster ride, but from my childhood, I used to dream to become a doctor. But my parents' dream was also that I become a doctor. But as I belong from a remote place where a bike goes hardly and communication skill was so poor, so I was not able to complete my education from nearby school. I have to shift in the city in my relative's house so that I complete my schooling. After completing my schooling, my dream was doctor, so I have to admit in science stream. But my friends were going to Ramanujan Junior College, but I was not able to afford it. I wanted to come in Maria Majmal Women's College of Science and Technology, but my parents' financial condition was not so strong enough, so they were thinking how will I do it. Then I approached principal ma'am, and I remember the day when I first came to Maria Majmal Women's College of Science and Technology. Director sir were there. Sir has provided me free studentship for my higher secondary course, and because of which I stepped my first step towards my goal. I completed my higher secondary course. My teachers always helped me, guided me, and at that time I did not know even about how. After that, I failed in first attempt. I got demotivated, but I never give up. I worked hard with consistency, strong determination, and I cracked NEET in 2018 with Assam rank 58, and I got admitted in GMCH. And after 4.5 years, finally 3 days back, I passed MBBS. Alhamdulillah. I really want to thank you, Ajmal family, Ajmal Foundation, my all teachers. They have helped me so much. Without the help of Ajmal family, it was not possible because if I have not done HS course in science stream, how will I become a doctor today? So I am very much thankful to Ajmal family, our director sir, for helping me. My dear juniors, I want to say a few words to you. You all are NEET aspirant, right? Who want to become doctor? Most of you. Engineer, teacher, civil servant. Very good. If you want to become doctor, you have to clear NEET or JEE or UPSC or APSC. First thing you have to do is set a goal. At first, you set a goal. You want to become doctor, so you have to prepare for NEET. So make a proper planning for it. On beginning of the day, you said that what will you study throughout the day, and then complete your target. वो टारगेट कंप्लीट करो जो तुमने सुबह सोचा है कि वो पढ़ोगे, पूरा दिन में कंप्लीट करो, वो अकम्प्लिश करो. ऐसा जब जब करते जाओगे तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा. एंड तुम्हारा सेकेंड थिंग है कि तुम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ करो. तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो मतलब स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड रहो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है. ऐसा नहीं है कि पहले मुझे डॉक्टर बनना है, बाद में नहीं मैं इंजीनियरिंग में चली जाऊंगी. ऐसा मत करना. तुम अगर डिटरमाइंड हो तो स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड रहो. और प्रिपरेशन को मतलब तुम्हें पसंद आना चाहिए, उसको तुम पैशन बनाओ. मैक्सिमम डॉक्टर बनना चाहते हो, बट इसलिए तुम्हें इसको पसंद आना चाहिए. तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में मैक्सिमम लोग वीक रहते हैं. सो तुम लोग फिजिक्स को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि फिजिक्स पसंद आने लगे. न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम लोग को अच्छा लगने लगे. ऐसा होना चाहिए. और उसके लिए तुम लोग का जरूरी है कि प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस आता जाएगा. मेरा भी फिजिक्स पहले वीक था, बट मतलब मैंने प्रैक्टिस किया. एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग था कि मेरा मैथ्स अच्छा था मेरा, तो इसलिए फिजिक्स थोड़ा बाद में इजी हो गया. और मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, इसकी वजह से फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया बाद में. तो तुम लोग भी ऐसा ही करना. स्ट्रांगली गोल सेट करो, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करो और अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो. तुम लोग अगर 12 आवर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 12 आवर में बैठी हूँ बुक खुल के ऐसे और मतलब कुछ भी याद नहीं हो रहा है, 12 आवर ऐसे ही बुक देख रही हो. ऐसा नहीं होगा. तुम अगर 5 आवर पढ़ रहे हो तो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो ताकि वो याद हो जाए. और आज एक चैप्टर किया, उसके बाद कल वो जाके रिवाइज करो. हम लोग का क्या होता है कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब कन्वर्ट होता है? जब आप नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करोगे. रिवाइज करने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहेगा. उसके बाद तुम अगर 1 वीक के बाद पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा तुम्हें. और उसके बाद कभी गिव अप मत करना. मैं फर्स्ट टाइम फेल हुई, बहुत डिफिकल्टीज आई, बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स था. बट फिर भी मतलब मैं तो वेटरनरी में जाने वाली थी. बाद में मतलब जिस दिन काउंसलिंग के पहले दिन मतलब मेरे सर ने कॉल किया, कॉल करके बोला कि
तुम नीट क्रैक कर सकती हो, तुम वेटरनरी में मत जाओ। उसके बाद मैंने फिर से कोचिंग लिया, ट्राई किया, मतलब मैंने गिव अप नहीं किया, बहुत मेहनत किया, इसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। और तुम लोग भी, मतलब मैं 6 ईयर पहले इधर तुम लोग के जैसे ही बैठी थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तुम लोग तो सुपर 40 के हो मैक्सिमम लोग, तुम लोग को तो पता है कैसे पढ़ना है, मतलब टीचर्स तो कितना गाइड कर रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा फैकल्टीज है, तुम लोग को तो प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है। तो मतलब उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, सार लोग को डाउट पूछो, जितना पूछ सकते हो पूछो। ऐसा नहीं है कि सिली क्वेश्चन है, फ्रेंड्स लोग क्या सोचेंगे, नहीं पूछूंगा, ऐसा मत करना। पूछो, जो भी डाउट है पूछो। मैं क्लास में पूरा पूछती रहती थी, बहुत लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रही है, बट मतलब ऐसा नहीं है, तुम डाउट क्लियर करो तुम्हारा। बहुत मतलब नीट प्रिपरेशन के टाइम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, एंग्जाइटी भी होता है बहुत। तो मतलब टीचर्स लोगों से बात करो, फ्रेंड्स से बात करो, शेयर करो, प्रॉब्लम शेयर करो, नहीं तो मतलब मेंटल पीस बहुत जरूरी है। जो लोग नीट देना चाहते हो, मैं एक बात बोलूंगी कि तुम लोग शायद बोर्ड के हो ना, जनरल कोर्स के हो, तो ऐसे तो पता ही होगा तुम लोग को नीट नीट का कैसा होता है पैटर्न, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, एनसीईआरटी से ही आता है। बायोलॉजी का तो मतलब 360 में से 340 मार्क्स पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो। बायो तो मतलब सबको अच्छा लगता होगा, तो बायो अच्छे से पढ़ो। मतलब बायो का एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन जो जो फ्लो चार्ट होता है, उसके नीचे में जो पॉइंट्स है या फिर डायग्राम्स का जो पॉइंट्स है, वो सब भी बहुत क्वेश्चन आता है, तो वो सब अच्छे से पढ़ो, पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ो। बायो में अगर 360 आ गया और क्या चाहिए, बाकी तुम्हारा फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 100 होने से ही हो जाएगा, है ना। और केमिस्ट्री के लिए भी मैं प्रिफर करूंगी एनसीईआरटी ही। फिजिक्स के लिए जो सर लोग पढ़ाते हैं उसका तुम्हारा फॉर्मूला शीट बनाओ अलग अलग से, क्योंकि फिजिक्स का बहुत सारा हो जाता है, बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होता है एग्जाम के पहले रिवाइज करना, तो इसलिए उसका फॉर्मूला शीट बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब ये देखो कि ये क्वेश्चन क्यों, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है, उसका देखो, मतलब फॉर्मूला के साथ चेक करो क्यों नहीं हो रहा है, सोल्यूशन मत देखना है पहले ही, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तुम लोग के लिए मैं यह बोलूंगी कि मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ो, सारे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सारे लोग पढ़ा रहे हैं वही देखो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी बहुत रिपीट होता है, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। ऐसा होता है, हाँ, मुझे भी बहुत बार ऐसा होता था, मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, तो मैं ये सोचती थी कि मेरी मम्मी पापा कितना मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए। पहले वो लोग का चेहरा ही मेरे सामने आता था कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, मुझे इतना दूर भेजा है कि ताकि मैं पढ़ पाऊँ, मतलब कुछ बन पाऊँ, डॉक्टर बन पाऊँ। इसलिए मैं वो लोग के बारे में जब सोचती थी तो मेरा ऑटोमेटिकली मतलब ध्यान आ जाता था कि मुझे पढ़ना ही है। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, ये सोचो तुम्हारा ड्रीम है ना डॉक्टर, तो ये सोचो कि मतलब मैं जब नीट क्रैक करूंगी तब क्या पहनूंगी, व्हाइट एप्रॉन पहनूंगी, है ना, स्टेथोस्कोप लगाऊंगी, तो स्टेथोस्कोप तब कितना अच्छा लगेगा, ये सोचो। उसके बाद मतलब जब तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें मतलब डॉक्टर बनते हुए देखेंगे, स्टेथोस्कोप पहनते हुए, उनको कितना अच्छा लगेगा। दैट हैप्पीनेस इज प्राइसलेस। मैंने जब नीट क्रैक किया था तो मम्मी पापा खुशी से रो रहे थे, मतलब, और ट्रस्ट मी दिस इज द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ माय लाइफ। तो ये देखो फर्स्ट ईयर का तो बहुत बाकी होगा, तो सेकेंड ईयर का जो जो चैप्टर सर लोग कराएंगे, जो कराएंगे वो अच्छे से करके जाओ, ठीक है। साथ में मतलब चैप्टर्स जो पढ़ा रहे वो अच्छे से करके जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री का ये करो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, वो एक मतलब शॉर्ट कॉपी बना लो, उसमें मतलब फॉर्मूलाज लिखो, ठीक है। और एक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक आता है, वो 35 ईयर्स का, वो कर लो, क्योंकि इतना वो नहीं होगा अभी, मतलब इतना वो नहीं कर पाओगे, तो अभी अभी के लिए मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और ये करो, ठीक है। बाद में अगर हो सके तो दूसरा बुक देखना, नहीं तो मॉड्यूल भी देख सकते हो, बट इतना बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अच्छे से करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। और मतलब तुम्हारा फर्स्ट ईयर का तो बहुत बैकलॉग होगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम होगा एचएस कंप्लीट होने के बाद में तो बोर्ड भी तो करना है, इसलिए मतलब तुम अगर 10 आवर प्लानिंग कर रहे हो पढ़ाई के लिए, तो उसमें से तुम 7 आवर उसमें दो सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, उसमें तो ज्यादा टाइम चाहिए होगा। और बाकी जो 3 आवर होता है वो तुम फर्स्ट ईयर के लिए दो, ठीक है। स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं होता है, मतलब कम कम सिलेबस होगा ना स्टार्टिंग में, तो मतलब 3 आवर फर्स्ट ईयर के लिए दो। फर्स्ट ईयर का वो जो जो चैप्टर्स है वो करते जाओ। मैं कुछ चैप्टर्स बोल रही हूँ, फिजिक्स का है, मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशन। मैथमेटिकल टूल्स का तुम्हारा उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, क्योंकि सब डिराइवेशंस में यही यूज होता है। मैथमेटिकल टूल्स, इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, और यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद वेक्टर्स। ये तीनों चैप्टर्स मतलब सब में यूज होता है, सेकेंड ईयर में भी बहुत यूज होगा ये तीनों चैप्टर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सब में बहुत यूज होगा। तो ये तीनों चैप्टर्स फर्स्ट ईयर का
अभी क्लियर कर लो, ठीक है, एक एक चैप्टर करके। उसके बाद केमिस्ट्री का तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट सब में यूज होता है, सॉल्यूशन वो सब में पूरा यूज होगा। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, ये सब में यूज होगा, तुम्हारा इनऑर्गेनिक में भी यूज होगा। और बायो के लिए सेल, लिविंग वर्ल्ड,